والے تھے. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے یہاں پہ اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں بیان کیا کہ ایک تو وہ مرد تھے, کسی عورت کو خدا نے نبی نہیں بنایا, رسول نہیں بنایا. دوسرا یہ بتایا کہ ان کے کسی کا بھی ایسا جسم نہیں بنایا اللہ نے جو کھانا نہ کھاتے ہوں. یعنی جسم جو ہوگا, جو جسد ہوگا, اس کو کھانا کھانے کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. کھانے کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اور یہاں پہ سورہ مائدہ کی آیت 75 میں اللہ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کے والدہ کھانا کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. مطلب اب نہیں کھاتے تو چونکہ ان کا جسد نہیں ہے اس لیے وہ زندہ نہیں ہے. مطلب یہ آپ نے تعویل کی ہے نا, اس میں کہیں نہ نام ہے کہ خدمات عیسیٰ علیہ السلام, ایسے کوئی آیت نہیں ہے سوائے آپ کی تعویل کی. دیکھیں آپ اصرار کر رہے ہیں اپنی اس کے اوپر. میں سمجھا آپ مجھے آیت دیں گے کہ ان عیسیٰ خدمات ایسی کوئی آیت ہوگی, وہ نہیں ملی. دیکھیں اللہ تعالیٰ تو آپ کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں غور کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. امر بھائی مزید سننا اگے انہاں دی آپس بحث ہے تھوڑی بہت نہیں صاحب موضوع پڑی, پھر وہ غصہ کر جاندا اس لا دیندا, یا تسی اگر کوئی گل کرنا چاہندے تو کر لو. ٹھیک ہے جس طرح دی بھی گفتگو ہے, لیکن یہ کوئی جڑا آؤٹ کم اینا نہیں ہوندا. یہ قرآن تے بڑا وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نا کہ قرآن تے لگے رہو, قرآن دے معنی ایسے بیان کرتے رہو جڑے مسلمان نہ منن, تسی وہ بیان کرو وہ بیان کرن تو لوگ آکھن بھی دوئے وال قرآن تے بحث پہ کرتے. ان میں انہیں پسند نہیں کرتا. بہرحال چلو کرے کرنی بھی پہ ہی جاندی گل کرے آ جو سامنے, بٹ یہ اچھا نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن تو انہوں نے اگے کوئی سوال رکھا جائے. انہوں نے اگے سوال رکھنا چاہیے مرزا قادیانی دی تحریرات, صرف مرزا دی تحریرات تو سوال رکھو کہ انج جانے نے جویں نا ویڑے کنک سکنے پائی ہوئے تو شیشے والا نہیں منجی تے بندہ بیٹھے ہوندا شیشہ لے کے تو اکس ماردا شیشے دا تے کہاں اڈدے انج اڈدے نے مرزا جی. بس انہاں کہ قرآن پڑھ کے تسی قرآن دی آیت پڑھ کے سوال رکھو گے وہ کچھ نہ کوئی وہ ڈنگ جڑنگ کرتے رہن, دیکھو وہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اچھا عامر بھائی تھوڑی جی میری تصریف فرمایا جے کہ وہ جڑی اپنا اصحاب کہف والا جڑا واقعہ ہے ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ 300 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 300 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 300 ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਖਾਧਿਆ ਪੀਤਿਆ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਕੌਲ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ 300 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ. ਜੀ ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਉਹ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਖਾਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਹਫ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਖਾਣਾ ਵਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਤਫ ਯਾਨੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਪਾਕ ਸਾਫ. ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਨਿਸਫ ਹੈ, ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਵਲ ਜਾਂ ਤਲਤਫ ਉਹਦਾ ਨਿਸਫ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਅਸਹਾਬੇ ਕਹਫ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ. ਸਿਰਫ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਐਸੀ ਗੰਦੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦੇਗਾ. ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਦੇ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਤਵੀਲ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ. ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਸਹਾਬੇ ਕਾਫ ਨਹੀਂ, ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਗਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ऐसी कोई तवील बना के तो जलेबी बना के देगा. मैं क्या तुम सिर फड़ के बह जाओगे. एक कौम की बात है, फलाने की बात है, वहाँ पर एक कौम थी, वो पूरी कौम जंगलों में जाके आबाद हो गई, वो साहबे काफ जो आप समझे उस तरह नहीं है. मतलब वो ऐसा इनकार ही कर देगा कि साहबे काफ इन्ने 100 साल बगैर खाना खाद्यों
ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਵੇ ਦੀ ਅਮਰ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ, ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਟੋਨੀ ਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਤੂੰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ 1893 ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਕੱਢ ਉਹੀ ਹਵਾਲਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਇਨਾ ਕਮਾਲਤ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਉਹ 1893 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, 10,000 ਮਸੀਲੇ ਮਸੀਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਬਸ 10,000 ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ 3 ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ। वालेकुम वरहमतुल्लाह। अभी भी आपकी बात सुन रहा हूँ मैं, और आपके नक्शे कदम पे चल के मैंने एक दफ़ा आपका बयान सुना। आपसे कोई पूछ रहा था तवफ़ा का माना क्या है, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, आपने बोला कि मैं तुझ पे अपनी नेमत पूरी करूँगा। मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने तहकीक करी, मैंने कहा बात तो सही है। मिर्ज़ा साहब ने कहा ये, मैं जनाब ले गया इसको एक ब्रॉड पे, आप यकीन करें 2 मिनट, बस 2 मिनट बाद मुझे उतार दिया। अगली ब्रॉड पे गया, 2 मिनट बाद मुझे उतार दिया। तीसरी ब्रॉड पे गया, 2 मिनट के बाद मुझे उतार दिया। अभी भी कोई बात ही नहीं करता। मिर्ज़ा साहब की बात हुई कि बात हुई रसवाई की, कोई समझ नहीं आता। हाँ, ये तो मसला होता है कि वो मिर्ज़ा साहब की, वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि आप किताब दिखाएंगे तो ऐसा ही है कि जैसा हमारे देहातों में ना सर्दियों के दिनों में गंदम जो होती है ना, उसको सेंध में फैला के ना किसी दरी के ऊपर, चटाई के ऊपर, तो वो उसको धूप लगवाते हैं कि भाई सूख जाए अच्छी तरह से, उसमें नमी खत्म हो जाए। तो कव्वे वगैरह, परिंदे वगैरह आते हैं ना चुगने के लिए, तो हमारे बुजुर्ग क्या करते थे कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग बैठ जाता है, आईना हाथ में पकड़ के, शीशा लेके ना, तो वो परिंदा जब आता है तो उसको अक्स मारते हैं आईने का। तो जैसे अक्स मारते हैं तो पत्थर मारने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कवा उड़ जाता है। जबरदस्त, बिल्कुल तो ऐसा। कादियानियों के लिए मिर्जा कादियानी की किताब का कोई सफ़ा उस आईने के अक्स की तरह है। आप अक्स पेश करेंगे वो दौड़ जाएगा, उड़ जाएगा वहां से। कसम से, कसम से। मैं वो खालिद बिन वलीद की ब्रॉड पे गया, मैंने कहा यार एक बात बताओ, वो किसी से बहस कर रहा था, या ईसा बाप फ़ाइल हो, बाब तफ़ील हो, और अल्लाह फ़ाइल हो, और पूरा एक कायदा बता के कहने लगा इसका माना मौत है। मैंने बोला अगर मौत है तो यहाँ पे मिर्ज़ा साहब क्यों कह रहे हैं नेमत पूरी करूँगा? कहता नहीं उन्होंने माना चेंज कर लिया बाद में। मैंने कहा मतलब तनाकुस तो आ गया ना, झूठे कलाम में तनाकुस होता नहीं, फिर उतार दिया मुझे। तो बात ही नहीं करते ये तो। करते तो ना करें, लेकिन मुखालफाना गुफ्तगू का बुनियादी असलूब यही है कि आप उनको उनके घर से हवाला पेश करेंगे। अगर हम अपने घर से, कुरान हदीस हमारा घर है, अगर हम इससे दलीलें देंगे तो वो उनके लिए तो खेल है, वो तो खेल तमाशा समझ के इसके साथ लगे रहते हैं। उनको उनकी किताब से हवाला देंगे। सुनने वाले आपको, अगर आपको कोई नीचे भी फेंकता है ना दूसरे मिनट में, तीसरे मिनट में, जो सुनने वाले हैं वो तो अच्छा तासर लेते हैं कि देखो हमारे मरबी ने मिर्जा साहब की किताब का हवाला देकर उसको नीचे उतार दिया। क्यों उतारा? जवाब देता, बात करता, उनके बंदे सुनते हैं और इससे अच्छा तासर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये आपकी बात सही है कि खून बहुत जलता है। जैसे अब 2 बंदे हैं, 2 इंटरनेट पे, यहाँ पे टिकटॉक पे, जब वो कुरान के ऊपर बात करेंगे बिल्कुल मेरा खून सड़ जाता है ना कि यार ये तो बिल्कुल अजीब सी बातें कर रहा है। एक तो वो मुरब्बी साहब इनका अंसर रजा साहब, और एक वो नासिर साहब है। मतलब बगैर किसी अपनी राय से बात करना हमेशा ना, अपनी राय से, और बगैर किसी उसके सबूत के, बस राय पे राय काम किए चले जा रहे हैं। मैं तो उनसे बात करके ना, जैसे अब तो मैं खुद ही रुक जाता हूँ, लेकिन इन लोगों से बात करके लगता है कि यार अपना खून सड़ाने वाली बात है। एग्जैक्टली। कुरान से फिर ज्यादा तकलीफ होती है ना। अगर वो मिर्जा कादियानी की तहरीरों से हेरा फेरी करें तो उतनी तकलीफ नहीं होती, बल्कि इंजॉय करता है बंदा कि मिर्जा कादियानी की ही तहरीर को वो जो तवील करने की कोशिश कर रहे हैं वो पूरी भी नहीं पढ़ रही, और वो अपनी ही दीवार के साथ टक्करें मार रहा है। तो उससे तो करते तो वो उसके साथ भी हेरा फेरी हैं। वो तहरीर को मानते नहीं है, मिर्जा कादियानी की भी तहरीर को वो कबूल नहीं करते, उसका को वट सलट करते हैं, अड़ांग जड़ांग करते हैं। तो करने दें, कम से कम वो दीवार अपनी से टक्कर मारे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
ہاں جی ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਸਰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਸਨਰ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਯਾਤੋ ਵਫਾਤ ਮਸੀਹ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇਣੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਿਓਗੇ। ਹਵਾਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। वैसे बात सही है, वो ना काना या कुलान ताम, कुरान कह रहा है वो खाना खाया करते थे, मिर्जा साहब कह रहे हैं कि हालत पैदारी है फिर गोश्त का हिस्सा साथ खाया है, अब किसकी माने? ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है। जब आपको उसने कहा ना कि काना या कुलान ताम, वो खाना खाते थे और कह रहा है कि खाना खाए बगैर जिंदा नहीं रह सकते, तो उसके आगे ये हवाला रखें कि मिर्जा कहते नहीं तो कहता है गाय का गोश्त खाया मैंने ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। वो कहेगा कशफ की बात है, कशफ की बात है, फिर उसको कहें कशफ की बात है तो उसने तो नहीं लिखा हुआ, कशफ का तो वहाँ पे जिक्र नहीं है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। इसकी टक्कर मरवाएं इसके अपने घर की किताब। इसीलिए तो अंसर रजा तो तंग आके उसने लिखा हुआ था अपने फेसबुक पर कि मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर मेरे सामने पेश नहीं करनी, सिर्फ कुरान का हवाला देना है, मिर्ज़ा कादियानी की तहरीर नहीं पेश करनी। अच्छा, कल मेरी बात हुई अंसर रजा से लोगतुल कुरान बिल कुरान पे ना, तो मैंने कहा तवफ़ा का माना अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, बिल्कुल बाहर मत जाना, अल्लाह फ़ाइल है, तवफ़ा का फ़ेल हो रहा है, बंदे पे मौत आ रही है। कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा लेकिन बंदा ज़िंदा भी है। तो मैंने कहा अब बताओ तवफ़ा पे बंदे पे मौत आती है, बंदा ज़िंदा है? कह रहा दोनों हो रही हैं। तो मैंने कहा या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ी का तयन कौन करेगा कि मौत है वफ़ातुल नौम है या वफ़ातुल मौत है? जब सब कुछ बात हो गई, तवफ़ा से मौत साबित नहीं हुई, हयात का लफ्ज़ दिखा दिया, वहाँ मौत साबित नहीं हुई, मौत का लफ्ज़ दिखा दिया, मौत साबित नहीं हुई, तो आखिर में कहता है अल्लाह के नबी की हदीस है कि 100 साल के अंदर सब मर जाएंगे, तो देखो ईसा अलैहिस्सलाम मर गए। मैंने कहा चलो आप इस बात पर तो आ गए ना कि जब कुरान नाजिल हो रहा था तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा थे। कह रहा मैंने ऐसा कब कहा? देखें, इससे आपने पकड़ उसको लिया आपने, लेकिन इससे सुनने वाला जो है वो इतना ज़्यादा असर नहीं लेता जितना आप उसकी तहरीर को पेश करके सुनने वाले के दिल पर असर डालते हैं। ये तकफीर का मामला, मुझे याद आ गई बात, तकफीर के मामले में अगर किसी कादियानी जो आम देहाती कादियानी है, जो नहीं जानता बिल्कुल, यानी वाक़िफ़ नहीं रखता इन बातों से, आम कादियानी को भी इन्होंने ये बात सिखाई हुई है कि अगर मिर्ज़ा साहब ने ये कहा है ना, अगर हम इनको काफर कहीं कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो मिर्ज़ा साहब के काफर हैं, कुफर का मानी इनकार करना, ये आम कादियानी ने बताई हुई बात। लेकिन जब उनके सामने आप बशीरुद्दीन महमूद अहमद का वो हवाला पेश करेंगे ना कि जो नहीं मानता मिर्ज़ा साहब को वो काफर, बल्कि पक्का काफर और दायरा इस्लाम से खारिज है, वल्लाह मैंने यहाँ पर कान पकड़ते देखा है मिर्ज़ाइयों का। यहाँ मिर्ज़ाइयों ने हमारे सामने कहा हमें ये इन बातों का पता नहीं था, ये हमारे दूसरे खलीफा ने लिखी है। जी दूसरे खलीफा ने, इसका अब क्या करें? अच्छा हम पूछेंगे। कई वाक़यात ऐसे हुए हैं कि उन्होंने कहा कि हम इनको जाके चेक करेंगे। इतना बुरा असर डाला इस बात ने कि इनका सारा वो जो बना हुआ था ना, एक इन्होंने हवा बनाया हुआ था कि हमें काफिर करार दे दिया, असम्बली में काफिर करार दे दिया, वो सारे का सारा चिकना चूर हो गया जब इनके सामने ये तहरीरें रखी गई। तो इन्होंने खुद हमें मुसलमानों को, अहले इस्लाम को काफिर, पक्का काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज करार दिया हुआ है, तो जनाजे तक पढ़ने से मना किया हुआ है। तो लोगों के कानों से धुआं निकल गया, कादियानियों के कानों से, तो भाई हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था कि हमारे काबरी ने भी इतनी ताद्दी की हुई है तकफीर में। तो ये चीज़ें हैं जो उनको असर करती हैं ज़्यादा। बिल्कुल मैं आपकी तायद करूँगा इस बात में भाई, वो इसलिए कि मैंने पूछा था सवाल साहिल लोगों से भी, और वैसे जैसे अभी तो नया हूँ, आप लोगों से सीख रहा हूँ, तो सब ने मुझे यही कहा कि जितने भी कादियानी इस कल्ट को छोड़ते हैं ना, वो एक्चुअली मिर्ज़ा की किताबों के हवाले से उनके छोड़ते हैं, वरना कुरान और सुन्नत से तो बचपन से वो खेलते ही आ रहे हैं। हाँ मुझे ये बात कही थी लोगों ने कि ज़्यादा असर उन्हीं से होता है, उनकी किताबों से।
میرے اتنے سالوں میں مجھے ایک بھی بندہ نہیں ملا جس نے کہا ہو کہ میں قرآن سے یا تمسی کا قائل ہو گیا تو پھر میں نے قادیانی چھوڑی، یا ختم نبوت کا قائل قرآن سے ہوا تو پھر میں نے مرزا قادیانی کو چھوڑا. نہیں، سب نے 100% رزلٹ ہے. یعنی جتنے لوگوں نے آج تک مجھے بتایا ہے کہ کیوں چھوڑا، انہوں نے مرزا قادیانی کی باتوں کو دیکھ کر چھوڑا ہے. اس کے کردار کو، اس کی تحریرات کو، تضادات کو، جھوٹ کو، دجل کو، دھوکے کو، اور اس کی یہ کفر پر تحدیاں کرنے کو کہ دیکھو مسلمانوں کے بارے میں یہ وہ باتیں کہتا رہا. لوگوں نے اسی کو دیکھ کر کہ بھئی ہم نے تو بچپن سے یہ سنا تھا کہ ہم تو ایک امن والی جماعت ہیں، پر امن، ہم تو کسی کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ کتابیں تو ہماری ساری ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. تو لوگوں نے ان کو دیکھ کر اسلام کو، اس لیے کوشش کریں سارے بھائی، یہ میں نے آپ کو صرف کہا، سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ حوالے ان کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں. کل مجھے انہوں نے بھیجا 600 صفحے کا سکین، 618 صفحے کی ایک PDF بھیجی اماد بھائی نے، نیچے بیٹھے ہیں شاید. تو اس میں وہ تضادات کے سکین پڑے ہوئے ہیں. مطلب اتنی محنت لوگ کر رہے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمیں چاہیے یوٹیلائز کرنا. میں اس پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا. 618 صفحے مرزا قادیانی کی کتابوں کے، یعنی 618 سکینز ہیں. آپ یہ کہہ لیں کہ 300 باتیں ہیں، ان کے الٹ 300 باتیں لکھی ہیں، تضادات. زبردست. وہ کتاب ہے تضادات قادیان کے نام سے کتاب ہے باقاعدہ. اور بھی ہیں، ہاں وہاں سے بھی اگر حوالہ جہاں سے بھی لے کے، لیکن اگر اب اوریجنل سکین آپ نے لیا قادیانی کی کتاب کا، اس کا پھر PDF تیار کیا، اس کی لسٹ تیار کر کے کہ اس بات کا یہ الٹ، اس بات کا یہ الٹ، یہ اس کی کتاب، یہ بھی اس کی کتاب، یہ اس کی اصل تحریر، یہ بھی اس کی اصل تحریر، تو زیادہ اثر ہوتا. اگر ہم اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے ایک جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے، دوسری جگہ پر لکھا، تو یہ میری اور آپ کی بات. لیکن جب اس کا سکین آپ سامنے رکھتے ہیں تو وہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے کہ بھئی یہ اس کی اپنی کتاب ہے، اپنا اس کا سکین ہے، اس نے یہ لکھا ہے اور یہ بھی اسی کی کتاب ہے. اچھا عمر بھائی، میرا خیال ہے کہ یہ جو مرزائی ہے نا، ان میں سے کسی نے بھی اپنی پوری کتب نہیں پڑھی ہوئی، بلکہ ان کو وہ تبلیغی جیسے نوٹس ہوتے ہیں نا، نوٹس بک، وہ یہ بنا کے دیتے ہیں اور یہ صرف وہی پڑھتے ہیں. اب اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی جو مرضی کرو، آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے، آدھی کہیں سے، اس طرح کے مطلب حرکتیں کی ہوئی ہیں. تو یہ ہے اصل وجہ. جب ان کے سامنے اصل بات سامنے آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں. جی، وہ جو شیخ کرتا ہے بات، عبدل شیخ، وہ پاکٹ بک سے ہی کرتا ہے نا، تو اس میں ایسے ہی ہے، ادھی حدیث، ادھی وہ پڑھ لی نا. حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ قولوا خاتم النبیین لا تقولوا لا نبی بعد، آدھی وہ پڑھ لیتا ہے، آدھی ابن ماجہ کی وہ پڑھ لیتا ہے. وہ نبی پاک نے فرمایا اگر یہ میرا بیٹا زندہ رہتا تو نبی ہوتا. ادھی وہ پڑھ لی، ادھی وہ پڑھ لی، نہ وہ سمجھ آئی نہ وہ سمجھ آئی کہ کیا پڑھ رہا ہے. تو یہ انہوں نے وہاں سے ہی رٹے مارے ہوئے ہیں پاکٹ بک سے. ان کا تو علاج ہو گیا، پاکٹ بک کا تو الحمدللہ مسلمانوں نے ایسا آپریشن کر کے ہاتھ میں پکڑایا کہ رہے نام سائیدہ. بڑا مزیدار سا واقعہ ہے کہ وہ شو کرتے ہیں کہ وہ فقط لبثت فیکم عمرن پہنا، تو میں محمد یا پاکٹ بک پڑھ رہا تھا. تو میری ایک جگہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا تم یہ آیت پیش کر رہے ہو، پہلے مرزا صاحب کو اسٹیٹس پہ تو لے کر آؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پھر جا کے بات کرنا ہے. کہتا وہ کیسے؟ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دیکھو وہ جو ہیں سردار تھے، مرزا صاحب کو کوئی پہچانتا نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی جو ہے سب کے سامنے تھی، ان کو ہر کوئی جانتا تھا. مرزا صاحب اپنے کمرے میں اندھیری کی زندگی گزار رہے ہیں. تو پہلے اس لیول پہ لاؤ، پھر بات کرو. ہاں بندہ برابر کا آ گیا، اب اس کی زندگی دیکھو. تو وہ کہنے لگا تمہیں یہ ریفرنس کہاں سے ملا؟ تو محمدیہ پاکٹ بک والی زبردست انہوں نے ریفرنسز نکال کے رکھے ہوئے ہیں. ہر چیز کا جواب جس طرح آپ کریں نا عامر بھائی، ہر چیز کا جواب نکال کے سامنے رکھ دیا انہوں نے. زبردست کام کیا ماشاء اللہ. بالکل بدیا بدیا سناؤ، رش پہ گیا آج. جی کلاؤڈ سرفر بھائی، جی کیا حال ہے؟ کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، الحمدللہ. اچھا، آپ حسینی صاحب کی براڈ پہ دوبارہ نہیں آئے؟ سر آ جائیں گے دوبارہ انشاءاللہ. وہ تو لگی ہوتی ہے ہر روز. ایک دفعہ آؤں گا انشاءاللہ، جب سارے وہاں بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ تو آ جائیں گے. بالکل بالکل، آج ضرور آئیے گا، کیونکہ انہوں نے جو ایک دو سوال آپ کے آگے رکھے تھے
किसके वहां पे आगे? तो आप कभी इधर उड़ते थे, कभी उधर उड़ते थे, कौन से फिर सवाल? भूं 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 करते चले गए आप। सर वो तो देखिए, उसके बाद तो मेरे पास 2 कादियानी यूथ लड़कों का मैसेज आया बाकायदा, अच्छा, और अभी तक मेरी उनसे व्हाट्सएप पे बात हो रही है। उन्होंने मुझे कहा कि जो बात आपने रखी है, हमने कभी इस तरह सोचा नहीं, व्हाट्सएप नंबर शेयर करें। पे नंबर शेयर हुआ माशाल्लाह, उनके सामने दलाइल रखे गए, और वो आप भले कुछ भी बोलें लेकिन सुनने वालों को फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, हम आपके इल्म को थोड़ी चैलेंज करते हैं। आपका माशाल्लाह अरबी का इल्म बहुत ज़्यादा था, तो आपके सामने बड़ा प्यारा सा सवाल रखा गया था कि जब हज़रत ईसा के बारे में पूछा गया तो आपसे पूछा गया था कि हज़रत ईसा ज़िंदा है, तो आपने कहा मिर्ज़ा कादियानी के मुताबिक तो ज़िंदा थे ना 52 साल। फिर उसके बाद यहाँ उन्होंने ज़िंदा कर दिया, वहाँ कुरान में ज़िंदा नहीं है तो वहाँ हदीस में ज़िंदा है, नहीं वहाँ नहीं, फलानी आप किताब गलत में ज़िंदा है तो आप गलत फलानी बोल रहे किताब में ज़िंदा है। क्लाउड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, टी हैं। टी 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 टी, और आप चले गए। देखिए, क्लाउड हाथ में नहीं आता, याद रखिएगा ये बात। हाँ, हाथ भी नहीं आया। आप हाँ, मसला तो ये सारा समझ यहीं रखिएगा। से ही शुरू हो गया कि आप हाथ ही नहीं आ रहे थे, तो फिर आप अकीदे भी हाथ में ही लेके कहीं पे चले गए सारे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो क्या हो गया था भाई? उस दिन तो आप ऐसे हाथों में अकीदे लेके चले गए थे और बाद में आप अपनी तारीफें करी जा रहे हैं भाई। फिर उसके माशाल्लाह। ओ बाद यार, आपके पास हुसैनी साहब ने एक बड़ा यहाँ यहाँ पे भी मिर्जा साहब का बहुत भाई कनेक्शन ठीक करवा लें भाई, क्लाउड को, वरना पकड़ा नहीं जाएगा। इंतजार वफात की 30 आयात है कुरान में, और दूसरी जगह में मिर्जा साहब लिखते हैं इज़्ज़ी ने चाहा कि इसको राज कर ले, मतलब कि इसको छुपा ले। माज़अल्लाह, अल्लाह ताला के ऊपर ये बुख्तान है कि अल्लाह ताला ने इस अकीदे को छुपा लिया और चाहा कि इसको मसीह मौद के जमाने में खोले। अब ये देखो, एक जगह में 30 आयात हैं कुरान में, और एक जगह में अल्लाह ताला ने ये चाहा कि इस अकीदे को छुपा ले मसीह मौद के जमाने के लिए। तो ये दोनों बातें आपस में कैसे आप करेंगे जी, इनकी तशरीह करेंगे? दोनों ही भाई दोनों मुतजाद है। बातों की तशरीह की ज़रूरत तो नहीं थी, वो बात है कि वो जिंदा हैं कि वो फौत हो गए हैं, बस ये बात आपने बता दी है। बात ये है कि कुरान तो पाक ये है कि झूठ नहीं मसीह बोलता, इज़्ज़ी ने चाहा इंसान कि की इस अकीदे तफहीम को गलत छुपा हो ले। सकती है। 1400 साल जो है अल्लाह ताला ने इसको छुपा लिया, भुगतान है अल्लाह 1400 ताला के साल ऊपर। के दरमियान में कहीं पे भाई तफहीम गलत हुई थी, तो ओ क्लाउड को भाई, मिर्जा पकड़ना साहब मुश्किल कह ही रहे नहीं हैं कि नामुमकिन है। मसीह इज़्ज़ी ने चाहा कि इस अकीदे को छुपा ले और मसीह मौद के जमाने में खोले, और इस खबर की हेडलाइन लगी हुई है, हेडलाइन कि तो भाई मसीह अगर आप ये बता दें कि वफात वो मसीह जिंदा का थे कि वो अकीदा फौत हो मिर्जा गए थे, साहब पे बस ये खोला गया। बता दें। ये हेडलाइन लगी हुई है ऊपर, अल फजल पढ़ा करो जाके, भाई मेरी बात हेडलाइन भी तो लगी सुन हुई लो, है कि वफात एक मसीह बात का तो बता दो। अकीदा हजरत मिर्जा साहब पे खोला गया। बिल्कुल खोला गया, इसमें कौन सा शक है? आप हाँ, तो कौन फिर सा यकीन 1400 करते हैं? साल तक तो वो मिश्ते इज़्ज़ी के जरिए जो है वो मशीते इज़्ज़ी ने चाहा कि इसको राज रखे, खोले ही तो ना। बस तो 30 ठीक है, आयात कहाँ से आ अब गई? राज खुल गया है ना भाई, तो आप तो 30 बता दें कि आयात कहाँ से हजरत आ ईसा गई? जिंदा है कि फौत हो गए हैं। यानी कि ये 30 आयात जो है ये मिर्जा साहब पे नाज़िल हुई थी, भाई पहले मिर्जा कुरान में साहब पे तो मौजूद नहीं थी। नाज़िल नहीं हुई थी, उनकी तफहीम तो उन्होंने ही बताई है। आप लोग तो तो जिंदा जो रख पहले के आज तफहीम भी चलती बैठे आ हुए। रही थी, जो पहले तफहीम की थी, जो रसूलुल्लाह ने दी अपने सुहाबा को, सुहाबा ने दी उम्मत को, वो तफहीम कहाँ गई? साहबा ने कौन सी तफहीम दी भाई? हजरत अबू हुरैरा ने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, और अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। तफहीम की है उन्होंने। तो आप ये बता देंगे हजरत ईसा अभी जिंदा हैं कि फौत हो गए हुए हैं। और हजरत अबू हुरैरा के ऊपर मिर्जा साहब ने जो है वो इल्जाम लगा दिया कि गबी थे, माज़अल्लाह। चलें अब हजरत आप इब्ने बता अब्बास दें के ना। ऊपर, हजरत इब्ने अब्बास के बारे में मिर्जा साहब ने कहा कि ये वो सहाबी रसूल है कि जिनके लिए रसूलुल्लाह ने दुआ की सीने से लगा के इनको तफसीर कुरान सिखा दो, और बाद में उसी सहाबी के बारे में कह दिया कि वो ताहीर व तकदीम के कायल थे, और ऐसा जो बंदा होता है जो तकदीर ये ताहीर का कायल होता है, उसके बारे में बड़ी गलत बातें लिख दी। ये थे आपके अच्छा मिर्जा भाई साहब। ये बता दें कि केस लमकाई रखना है क़यामत तक, के केस को हल भी करना है। भाई केस तो हाल है कि मिर्जा साहब ने कहा कि मुझे इल्हाम हुआ है, और अल्लाह मल मिर्जा कुरान, साहब को छोड़ कि दे, तुझे मिर्जा साहब कुरान को आप का ठाठे मानते हैं? मारता इल्म अता किया आप गया। मिर्जा और साहब जब को वो इमाम इल्म महदी अता किया मानते हैं? गया तो उस वक्त हयात मसीह का अकीदा था मिर्जा साहब का। नहीं नहीं, तो आप इसका बताएं, मतलब आप वो मिर्जा अल्लाह मल साहब को कुरान उस वाला वक्त इल्हाम मिर्जा मानते साहब थे पे कि गलत आप हुआ, मिर्जा झूठा था साहब वो। को इस वक्त मानते हैं? मैं पूछ तो रहा हूँ कि जो आपकी अल्लाह हर मल बात कुरान का मिर्जा इल्हाम साहब हुआ पे था शुरू होती है, मिर्जा साहब 1882 पे में, खत्म होती है। 1882 में अल्लाह मल कुरान का जो इल्हाम हुआ वो झूठा था।
भाई आप बता दें कि आप मिर्जा साहब को मानते हैं, कुरान पाक को मानते मैं हैं कि आपसे पुराने पूछ वाले रहा हूँ, मिर्जा आप साहब मिर्जा को साहब मानते को हैं? मानते हैं? उनके ऊपर जो 1882 में इल्हाम हुआ था, अल्लाह कुरान, कि तुझे कुरान का ठठ मारता इल्म अता किया गया, वो इल्हाम झूठा था, शैतानों चलिए की आप तरफ से मुझे हुआ था? बता दें, हम भी मिर्जा साहब को छोड़ देते हैं, आप बताएं कि मिर्जा साहब पर आपको ईमान है कुरान पाक पर है कि रसूल पाक पर है? हमें तो रसूल पाक पे ईमान है ना, हाँ, तो रसूल पाक पे लेकिन जो आपको तो ईमान नहीं है है, ना, आपको तो मिर्जा साहब पे अच्छा, ईमान है ना, आपका आप ईमान तो रसूल मिर्जा साहब पाक पे है। के मुताबिक जो ईमान है आपको, उसके मुताबिक बता दें क्लाउड भाई भाई को कि मिर्जा हजरत साहब ईसा कहते जिंदा हैं, है कि नहीं जिंदा है। मिर्जा साहब कहते हैं कि इस्लाम की इस्लाम में जब नबी आता है तो वो एक अलग उम्मत बनाता है, तो आप तो अलग उम्मत हो गया ना, आपका रसूल करीम से क्या ताल्लुक? आपकी तो अलग उम्मत है। तो भाई हमारा तो ताल्लुक नहीं है, तो आप अपना ताल्लुक तो बता देना, आप बता दें भाई अल्लाह की का। मिर्जा साहब की बात है कि देखिए मुसलमानों इस्लाम के की सामने जब इस्लाम इनके में कायद जब रखते हैं, नबी आता कुरान है तो पाक अलग रखते हैं, उम्मत तो ये बनाता भाग है। जाते हैं। फिर यार जब मिर्जा साहब मुसलमानों से से क्यों हम भागते हो अकीदा यार पूछते हैं वाटर? तो फिर मुसलमान भाग जाते हैं, फिर कहते हैं यार रूहानी मिर्जा साहब खजाइना से यार खोरे। क्यों दौड़ते हो यार? मिर्जा साहब से क्यों दौड़ते हो? चलो आबिद साहब आ गए। आबिद साहब क्या हाल है? आबिद साहब अस्सलाम आ गए हैं। वालेकुम। भाईजान इस बंदे को ना हुसैनी साहब ने 2 सवाल पूछे थे, अस्सलाम इसकी वालेकुम पी बोल गई रहमतुल्लाहि थी। व बरकातहू। 2 सवालों पे ये क्लाउड सर्फर मिल नहीं जी रहा था, पता अबू नहीं बकर कितने भाई क्या क्लाउड में हाल है? चला गया और फिर वापस ही नहीं ठीक आया। है राहुल भाई, ये तत्ते दबे हुए बैठ के अच्छा दर्द बर्दाश्त तत्ते कर रहे तवे हैं। पे नहीं अबू बैठे, बकर क्लाउड भाई सर्फर आना अबू आज बकर तुम, भाई फिर तुमसे पूछेंगे सवाल। आज अबू तुमने बड़ी बकर अपनी भाई मैं तारीफें खेल आपकी ली हैं। तफसील फरमा दूं, वो जो इल्हाम आप कह रहे हैं 1882, वो 1882 नहीं 1877 और 1880 में हुए हैं। चलिए हाँ अर्रहमान जी, अल्लमा वो अल कुरान 77 से दे नहीं चाहिए इजाजत, था मा बस। उनज़िरा आपके पास बाहुम, क्लाउड ये सर्फर साहब आए हुए हैं, 1877 और आप इनसे पूछें 1880 में सवाल। है। क्लाउड सर्फर आज जरूर अच्छा आना भाई, आपसे सवाल पूछेंगे हुसैनी साहब की ब्रॉड पे, जो सर पहले भी मैं पूछे तो थे फिर आप भाग गए थे। सर मैं तो मुजाहिद हूँ, हर जगह मिलूंगा आपको, परेशान ना हो। सर आप मुजाहिद अच्छा हैं तो कुछ क्लाउड थोड़ी सर्फर सी भाई, तैयारी भी कर लिया करें जी सवालों की, जी जी ऐसे ना किया करें। क्लाउड अब सर्फर कुरान भाई के अलावा एक किसी सवाल का मेरा भी यानी नहीं ले कुरान से जाइएगा। बाहर नहीं निकलना, और खुद कभी हदीस एक पे जंप मारी, कभी मिर्जा साहब यार की किताब पे साहब, जंप मारी। यार साहब, सवाल कौन से थे जो आप मेरे दोस्त सवाल सनी साहब ने पूछे? वो कौन से 2 सवाल? पता नहीं सर यार, ये इनसे हुसैनी साहब ने खुद यही ही सवाल परेशान हुए पूछा हैं। था कि हजरत ईसा अभी जिंदा है कि नहीं है, तो ये कहते हैं कश्मीर के बाद पंजाब आता है, पंजाब के बाद हरियाणा आता है, हरियाणा के बाद सिंध शुरू होता है, सिंध के बाद राजस्थान आता है। क्लाउड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लो जी, फिर हुसैनी साहब ने कहा कि यार ये तो बताओ कि ये, वाटर साहब यही अच्छा सब कुछ सवाल मिर्जा सुन ले गुलाम पहले, मैं जो कादियानी मेरे साहब से ने आमिर किया ने हुआ बात है। की है ना, वो मुझे बता लेने दे, ठहरे जरा। कर लेना दो, कर लेना। हाँ कर ले, फिर, मजा आ रहा है सुनने में। करे करे हाँ करे फिर उसके बाद हुसैनी साहब ने कहा कि यार मुझे ये तो बताओ, ये जो तुमने मुतवफ़ी का मतलब लिया है, पूरा पूरा ले लेना हुसैनी साहब। इसका कलामुल अरबिया में, मैं अरबी भी तो बोलता हूँ ना हुसैनी साहब, तो कलामुल अरबिया में इसका ये मतलब है। हुसैनी साहब ने कहा यार मुतवफ़ी का मतलब तो हज़रत ईसा दुनिया पे भी वापस आ जाएंगे तो फिर भी मुतवफ़ी रहेगा। अरे हुसैनी साहब, लाम के बाद मीम आता है, मीम के बाद नून आता है, नून के बाद वाव आता है, ये हमजा रे। हुसैनी साहब क्लाउड को पकड़ना मुश्किल ही नहीं। हुसैनी साहब ने कहा बेटा वाकई क्लाउड को पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कहते हैं हुसैनी साहब देखें, फिर आज आपने भी तारीफ कर दी। उन्होंने कहा बेटा मैं तो पहले वक्त से ही आपकी तारीफ कर रहा था। लो जी, एनएच क्लाउड टुर गया, एडा मजा आया बड़ा कि नहीं, अच्छा कपौड़ी सा है है कि कि कोई नहीं हद आई? नहीं। दसो एक गल दसो, क्लाउड में पढ़ना आसान है कि नहीं? यार एडा बड़ा पूरी बाज होए तो उसकी तो पूरी पकड़ने में 3 दिन लग जाते हैं। बहुत लेवल का छड्डू है ये। अच्छा चलो अभी हुसैनी साहब बताओ। मैं तो एयरफोर्स का पायलट भी हूँ। हुसैनी साहब ने कहा बेटा आप एयरफोर्स के पायलट नहीं, आप तो रॉकेट उड़ाने वाले लगते यार हैं साहब, मुझे। सवाल मैं इन्ना पूछा है भाई, ओना सनी साहब ने सवाल केड़े 2 पूछे है तो पता? सर आपको बता दिए, आपने सुना ही नहीं। आपने सवाल आपको नहीं बताए, आपने नकलें उतारी हैं उनकी बस। नहीं भाई, 2 सवाल भी बता दिए हैं। हुसैनी साहब ने कहा कि मुतवफ़ी का मतलब मुतवफ़ी रहना है, चाहे आपके हज़रत ईसा वापस भी दुनिया में आ जाएं। तो क्या आप बता रहे हैं लोगों को कुरान करीम में तनाक़ुज़ आ जाएगा, या तनाक़ुज़ है? आज कुरान शरीफ और कह रहा है, कल कुरान शरीफ और कर देगा। हज़रत ईसा ने कोई वापस नहीं आना, वो फौत हो गए हुए हैं। तो आप उसकी हयात कहीं से साबित कर दें या नज़ूल साबित कर दें। तो फिर मिर्जा कभी साहब, फिर मिर्जा साहब का दावा झूठा है ना? फिर मिर्जा साहब कित्थों झूठे हो गए? ए तुहाडा जिहड़ा पायलट आया सी, अगर इस ए तरह उत्थों से भज बहुत हो गया गए सी। ना, पायलट साहब दौड़ गए सी तुहाडे, मैं ਜਿਹੜਾ क्या ਇੱਥੇ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ना पायलट ਦੀਆਂ, यार वो मैं पायलट इस को तरह हुसैनी से साहब ने मैं पैक करा के पहुंचा दिया। अच्छा यार आबिद साहब ने गल करो, आए नहीं तो उन्होंने थोड़ा टाइम
चलो ठीक है, आप पायलट से बातें करें, कश्मीर, पंजाब, बलूचिस्तान, आमिर सरहद। नज़ीर साहब आपसे एक सवाल है। आमिर नज़ीर साहब आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि जो मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा कि मुझे इल्हामन बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा गए हैं, वो इल्हाम कौन सा था मिर्ज़ा साहब का? इल्हाम के अल्फाज हैं शहरियार साहब आपके पास कहीं? जी अमर साहब, उसने आप देखे ना सवाल किससे किया है? नहीं, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है वो। तो बस रहने दें फिर, आप हजरत ईसा को जिंदा रखें ताकि नहीं, इस्लाम मिर्जा जगह साहब जगह को झूठा साबित हो। मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ था, जी हुआ था। क्या अल्फाज थे उसके? ईसा इब्ने मरियम फौत हो गया है और उसके रंग में तू रंगीन होके आया। ये इल्हामी अल्फाज हैं, जी, ये तज़किरे मौजूद हैं। अगर ये अल्फाज ना हो तो हजरत ईसा आसमान पे जिंदा हैं, वो आसमान पे मौजूद हैं। आमिर साहब मैं इतना बता दूं कि वो अल्फाज अरबी के अंदर हैं, उर्दू के अंदर है ही नहीं, अरबी के यार अंदर है। अरबी के अंदर हो या जो मर्जी हो, मेरी तुमने अरबी चेक करनी है कि हजरत ईसा की जिंदगी और मौत साबित करनी है? नहीं, तुम अल्फाजों से मैंने जिंदगी मिर्जा मौत साहब का साबित इल्हाम करोगे? चेक करना है। मैंने मिर्जा साहब का इल्हाम चेक करना है। करो वो यार बताएं इल्हाम इल्हाम चेक, कौन सा 100 था। बिस्मिल्लाह यार, इल्हाम चेक कर। हाँ, वो इल्हाम बताएं, अल्फाज बताएं ना, कौन सा भाई कौन मुझे से तो अल्फाज इल्हाम थे। के अल्फाज बिल्कुल ज़बानी याद नहीं। कल आप कुरान शरीफ की मुझसे आयतें मांग लेंगे, मैं आपसे मान लूंगा। आप हाफिज हैं? आप जी चले मुझे हाफिज पहले नहीं हूँ, इस पारे से लेकिन मैं शुरू हो निकाल जाए, के 30वें इस मैं पारे की आखिरी आप आयत तक सुना दें, अगर आप इतने बड़े ओ हाफिज हैं सर आप, मैं हाफिज नहीं हूँ, मैं तो हाफिज मैं नहीं भी हूँ, लेकिन हाफिज नहीं निकाल हूँ के दे मिर्जा सकता साहब की हूँ ना। किताबों का। हाँ तो निकाल के दे दीजिए, निकाल के दे दीजिए। तो अगर मैं ना निकाल के दूं तो हजरत ईसा आसमान पे जिंदा रहेंगे? नहीं, अगर आप नहीं निकाल बताए के ना दे भाई, सकते तो फिर मिर्जा अगर गुलाम आपका कादियानी अकीदा साहब के इतना बारे में सच्चा खुद है सोच तो मिर्जा लीजिए साहब के पीछे क्यों कि आगे छुपते हो? उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने झूठ बोला तो आपने सच बोला है, कि मुझे इल्हाम हुआ आपने है, सारी उम्मत उन्होंने से फिर सच झूठ बोला हुआ बोला है कि ना। हजरत ईसा आसमान पे जिंदा है, और अभी भी झूठ बोली जा रहे हैं, बोली जा रहे हैं, बोली जा जी रहे हैं। और वो उन्होंने उन्होंने अल्फाज तो हैं फिर झूठ बोला ना। जी, नहीं, 1894 का आपने सच इल्हाम है। बोला है, जो 1400 जी साल से आपको अपने इतने सच पे फख्र है। अच्छा, क्लाउड सर्फर भाई क्या कहा आपने? वो 1894 का अल्फाज है। वबशरनी वक़ाल इन्नल मसीह अल मऊद अल्लज़ी यरक़ुबूनहु वल महदी अल मऊद अल्लज़ी यंतज़िरूनहु हुवा अंत नफ़अलु मा नशा फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। ये जनाब इसके अल्फाज नहीं हैं सर, ये इल्हाम तो नहीं है वो। कि जो मसीह मऊद जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं वही महदी है, जिसके लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो तुम हो। नहीं हुआ नहीं अंत। क्लाउड सर्फर भाई, मैं इनसे वो इल्हाम मांग रहा हूँ। मिर्जा साहब ने जो लिखा है कि मुझे इल्हामत बताया गया कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं, मैं हाँ वो इल्हाम पूछ। वो ये रहा ये 1891 में उसने मुझे भेजा और मेरे पर अपने ख़ास इल्हाम से ज़ाहिर किया कि मसीह इब्न मरियम फ़ौत हो गया है। चुनांचे उसका इल्हाम है कि मसीह इब्न मरियम रसूल अल्लाह फ़ौत हो चुका है और उसके रंग में होकर वादे के मुवाफ़िक तू आया है। फिर आगे अरबी है वकाना वादुल्लाहि मफ़ऊला अंत माई व अंत अलल हक़्क़िल मुबीन अस्तग़फ़िरुल्लाह अंत मुसीबुम व माइन लिल हक़। पता नहीं अंत मुसीब, मुझे तो मुसीबा लग रहा है। और क्लाउड सर्फर भाई, आप ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? आप रूहानी खजाइन से पढ़ रहे हैं? नहीं, तज़किरा तस्करा, वो तस्करा में है, लेकिन वो जो डेट आप बता रहे हैं उसमें नहीं है। 1891 का। अच्छा, इससे पहले होगा। नहीं है 1891 में ही, ठीक है, लेकिन वो इबारत और है, अरबी की इबारत है वो, और है, वहाँ पे उर्दू का लफ्ज़ भी नहीं है। ये मेरे सामने कैमरा खुला है, ये रहा तज़किरा। इसमें हाँ लिखा जी, हुआ है 1891 तज़किरा, पेज नंबर 148 में। और इसको मैं बड़ा कर हाँ देता हूँ। ये ना 1891 का इल्हाम है। हाँ, पढ़िए ज़रा, मसीह इब्न मरियम पढ़िए। रसूल अल्लाह फ़ौत हो चुका है और उसके रंग में होकर वादे के मुताबिक तू आया है। ये 1891 का इल्हाम। सर 1891 का ये है, वो इबारत और भी है, वो जिससे मिर्ज़ा साहब ने इस्तदलाल लिया हुआ है वो और है। और वो ये एक 1894 का अरबी में है, जो मैंने पढ़ा था। ये दो हो गए और कोई है
हाँ यही है इसके तज़किरा का नाम। आबद भाई आप कौन सा कहना चाह रहे हैं? चलें भाई, बाकी की लड़ाई आप लोग जी लड़ मैं लें। एक मिनट आपको बताता हूँ मैं जो कहना चाह रहा हूँ। शहरियार साहब अपने नबी दा ऐलान सुन जो ना दौड़न लगे हो। नहीं सर, मैं दौड़न नहीं लगा ना, मैं किधरे जा रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਲਾਮ ਬੇਫਿਕਰ ਲਗੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਮ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। अच्छा वाटर साहब, ये जो इल्हाम है इस पर आप कुरान की तरह यकीन रखते हैं? अरे कुरान की तरह यकीन तो दुनिया की किसी किताब पे नहीं रखा जा सकता भाई। मिर्जा साहब कहते मुसलमान हैं कि होने मैं का अपने तकाजा ये इल्हाम है पे कि कुरान कुरान की की तरह तरह यकीन यकीन रखता हूँ। नहीं रखा जा अरबाइन सकता। नंबर 4 के अंदर मौजूद है, अरबाइन नंबर 4 के अंदर। अच्छा और यार कितने झूठ बोलोगे यार तुम लोग, कितने झूठ एक बोलोगे, मिनट निकाल झूठे के अकीदे देता हूँ बनाने मैं, के लिए निकाल के कितना देता हूँ, झूठ मैं लैपटॉप बोलोगे। ऑन कर लूँ। और कहीं तो मान जाओ जोली अल्ल भी, क्या हाल करोगे तुम इस्लाम का। माफ कर दो यार हम सारों को, वाटर भाई बाबा दहन अपनी सुबह सुबह क्या ख्वाहिश खाया पूरी है? करने के लिए सारा इस्लाम बदल डाला है यार तुम लोगों ने। नहीं आपने खाया क्या है सुबह सुबह वाटर भाई? अरे भाई मैं फजर के लिए उठा हूँ, बस मुझे इजाजत दो, मेरी नमाज का टाइम निकल रहा है। जजाकल्लाह भाई। वो तो वाटर भाई वो तो एक्सरसाइज होगी ना, इस्लाम नमाज तो मुसलमानों की होती है ना, आपको तो एक्सरसाइज करना बोला, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात की, मुसलमानों के मुंह से ऐसी बात ही निकलती है, पता नहीं कैसे मुसलमान आ रहे हैं, कागजी मुसलमान, चाइना के मुसलमान हैं आप लोग तो। मैं कह रहा हूँ आप एक्सरसाइज करें, उसको प्लीज ये ना बोले मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बोले एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं 2 रकात करके ना। अरे पलीज ऐसी एक्सरसाइज करने वाले को ये आपने अपना लीडर बना ही रखा था 50 साल जब वो दुनिया में था। नहीं और नहीं वाटर है, मिर्जा साहब ने कहा हुआ है कि नमाज का ना गुनाह होता है ना सवाब होता है, अले तो ये एक्सरसाइज किया ना। अरे मिर्जा और साहब ने नहीं कहीं ना कहीं अबू नमाज बकर की मीर तारीफ भी भाई, की होगी। ना सवाब ना गुनाह की तरफ नहीं जाना। आप ये कहो ना कि तेरी नमाजों से तेरे काम अफजल है, चलो बस ऐसा है ये कहो। कि आप अच्छी सी तहकीक कर लो और मुझे बता देना हजरत ईसा जिंदा हैं कि फौत हो गए हैं, हाँ। वरना अपना अकीदा भी बदल लो। मिर्जा साहब ने तो 52 साल की उम्र में बदल लिया था, तुम लोग वहीं के वहीं खड़े रह गए हो। आगे बढ़ो हाँ, यार, काम आगे अफजल है। बढ़ो। इस्लाम सच्चाई का मजहब है, गप्पे और कहानियां कराने का मजहब नहीं है। और नहीं कभी अरबी कहानी, यार, कभी नमाज हदीस से कहानी, अफजल काम कौन कभी सा कोई हो सकता वाकया है, जरा कहानी। बता दीजिए, एक आध हमें भी पता चल जाए। अरे भाई सारा ओ कुछ तो वाटर बता साहब, कोई दिया तुमने, नमाज और से कितना कोई एक बता आध दें। काम कोई ज्यादा अरे बता भाई दो क्लाउड ना को हमें पकड़ना भी। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अल्लाह हाफिज। बहुत ही चोट खाए हुए हैं आज ही क्लाउड से। अच्छा ये नमाज जो पढ़ता है वाटर है, तो इसमें वाटर इस्तेमाल होता है, ज़ाहिर है जो वुज़ू करते हैं, तो वाटर साहब आप वाटर कहाँ का इस्तेमाल करते हैं? अरे ये तो ऐसे ही है। अच्छा ये एक जिसके लिए मैं आया तो मुझे याद आ गया मुझे, ये अगर कुरान ने मेरा नाम इब्ने मरियम नहीं रखा तो मैं झूठा हूँ। अच्छा इसके बाद क्या मिर्ज़ा साहब ये भी कहते हैं कि ये एक जगह पर लिखा है कि हाँ हमने बार बार समझाया कि ईसा परस्ती बुत परस्ती से कम नहीं और मरियम का बेटा कशलिया के बेटे से कुछ ज़्यादत नहीं रखता, मगर क्या आप लोगों ने तवज्जो की ये कशलिया कहाँ से आ गया बीच में? ये मिर्ज़ा साहब को क्या सूझी ये ईसा अलैहिस्सलाम को वहाँ कंपेयर कर दिया? ये किसी ने पढ़ा है कशलिया वाला अंजाम आथम के अंदर? नहीं नहीं यानी कोई वो उस वक़्त का वो कोई बुत परस्त कशलिया का बेटा, उससे ईसा अलैहिस्सलाम को मिला रहे हैं ये मिर्ज़ा साहब के कशलिया का, मरियम का बेटा कशलिया के बेटे से कुछ ज़्यादत नहीं रखता। और कशलिया जो है वो उस वक़्त का किसका है? कशलिया हिंदुओं की राजा रामचंद्र की माँ का नाम है। अले लो संभव। हाँ जी, ये मैंने कल पढ़ा, ये मेरे पास आया, मैंने कहा ये क्या कर गया ये मिर्ज़ा, मतलब कशलिया और हिंदुओं की राजा रामचंद्र की माँ का नाम है और उसका बेटा को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला गए। मिर्ज़ा साहब अजीब मजाक है। ये कौन है भट्ट जी? जी अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू भाईजान, वालेकुम। माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, इनको दोएं अच्छी तरह। क्लाउड भाई क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। कल माशाल्लाह डिबेट आपकी सुन रहा था, अच्छा कर रहे हैं मुजाहिदीन। अल्लाह आप सबको इसका अजर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी भाईजान। हम सब मिल के काम कर रहे हैं भाईजान, दुआ करें कि जी जी हम सब का एक ही मोटिव है कि क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी हौज़ कौसर पे हमें अपने हाथ से पानी पिलाएं और कहें इंशाअल्लाह कि जब आमीन दुनिया टिकटॉक पे नाच गाने में मसरूफ़ थी और फितना जो है वो ख़त्म अल्लाह नबूवत के ऊपर हमले कर रहा था, तब ये लोग वहाँ पे इसका दिफा कर रहे थे। दुआ करो अल्लाह हमें उनमें शामिल कर ले, सबको, हम सबको आमीन इंशाअल्लाह। आमीन। सर हम सहाबा के तरीके पे चल रहे हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे। तो इंशाअल्लाह हमारे बाद में भी अल्लाह सुब्हान तआला और कईयों को काम सौंप देगा। ये सदका जारिया और ये चलता रहेगा और सर ये इस तरह ਅੱਛਾ, के ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मुशरिकीन निकलते रहेंगे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ इंशाअल्लाह ਮੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਵਗੈਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਜਾਓ ਨਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਡੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮਾਂ ਉਹ ਚ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਜਰਮਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਬਾਹਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਲਾਣਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੰਘ ਆਓ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਔਲਾਦ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕੌਮ ਹੈ। ਬਦਬਖਤ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਰਾਨਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਖਾਜਾ ਲਾਈਫ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆਖੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਲਹਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਆਇਆ? ਤੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਗਰ ਲੰਘ ਆਓ? ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆਓ। ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਸ ਤਹਿਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਨੇ कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और वादे के मुवाफिक उसके रंग में होके तू आया है। हुण बंदा पूछे कि वो वादा की सी कि जेड़े वादे के मुवाफिक होके मिलदा आया। पहले तो वादा लभो, हां वादा है की सी? ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਉਸ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾਓ ਅੱਬੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੰਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤਾਹਿਰ ਦੇ। ਨਬੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਮਸਕੁਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਜੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕੁੰਡੀ ਨਾ ਖੜਕਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਆ। नहीं, इनको मिर्जा पे रखे, इनको सही बात है, इनको ना छोड़े। हाँ, इनको दूसरे उनको कोई यार कुरान पाक का तर्जमा वगैरह छोड़ दे, ये चीज़ों पे ना जाओ, सीधा इस पे आओ ज़रा मिर्ज़ा साहब पे।
जिस पे आप लोगों ने ईमान है, जिस पे नौज बिल्ला आप लोग, अल्लाह हदायत दे इनको, हम सबको भी ਉਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ सीधे ਨੇ रास्ते ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਭਗਵਾਨ तुम्हें ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਪਰ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ। जी जी वो सर बेशक ਅੱਛਾ ਹਦਾਇਤ ਨਾਸਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬੱਟ ਮਿਲਦੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਤੜਫਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਨਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਗੰਦਾ ਕੀਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ गए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ ईसा बना ਦਿੱਤਾ। किस ने बनाया? इश्तिहारे के रंग में 10 माह का हमल ठहरा के, लाख दी लानत, इश्तिहारे के रंग में हामला ठहरा के, ये भी नहीं कोई बंदे दे पुत्रा हर हामला ठहरा के ते ईसा बनाया। यार आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा ये देखें, आप थोड़ा सा समझ नहीं रहे। एक इसको हमल हुआ खोती वाला, तो हमल से बच्चा भी उसी का होना है ना, खोती का बच्चा पैदा हो गया तो यानी एक खोता निकल आया, ठीक है। अच्छा आमिर साहब, मैं आपको बताने आया था दुआ कि में एक याद बंदे ने रखे सर, challenge मुझे किया। इजाजत दें, इंशाल्लाह ठीक फिर है बात डॉक्टर होती साहब, है। मेहरबानी। ओके चलो। आमिर साहब, मैं ना एक चैलेंज आपको बताने आया था, ये कादियानियों की तरफ से कल चैलेंज उठा है, तो वो मैं आपको बता दूं, तो फिर आप चलें 10 मिनट हंसने के लिए आपके लिए काफ़ी होंगे। एक बंदा अपनी बराड़ में बैठ के कहता है जी कि अगर हमें पाकिस्तान में मुस्लिम करार दिया जाए और हमारी तालीमात खोल दी जाएं तो मैं अपनी कादियानियत ना साबित कर सकूं तो मुझे मसरूर ना कहना। तो मैंने नाम नहीं उसका बताना कि वो कौन था। नहीं, मुझे नादर ना कहना। तो उस बराड़ वाले का नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे नादर नहीं कहना तुमने अगर मैंने कादियानियत साबित ना की। तो मैंने उसे कहा कि तू यहाँ बैठ के हम जैसे आम मुसलमानों से बात नहीं कर सकता, तो तूने हमारे उलमा के साथ क्या बात करनी है? कहता नहीं, तुम हमें मुसलमान करार दिलवाओ, मेरा पैगाम है ये 300 बंदों के सामने। अगर मैं अपनी कादियानियत साबित ना कर सका पाकिस्तान में तो मुझे नादर नहीं कहना। तो मैं उसका नाम नहीं बताता आपको कि वो कौन था, तो लेकिन ये चैलेंज है जी आपके लिए, आप इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਬਤ ਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ 10 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਮਲ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਦੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਫਕ ਕੀਤੀ, ਈਸਾ ਦੀ ਰੂਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਨਫਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਈਸਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਜ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਣਿਆ ਬੰਦਾ? ਅੱਛਾ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ, ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਲਹਾਮੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਭੇ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੱਲੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਬੀਓਂ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਦਾਨੀ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ? ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੇ ਗਲਤ ਨੇ ਨਬੀਓਂ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੇ ਪਲੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਚਾਦਰ ਏ, ਸਿਰ ਕੱਜਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਕੱਜਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਡਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾ ਇਲਾਜ ਮਿਰਜ਼ਾਈਅਤ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤੇ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 618 ਸਫੇ ਦਾ PDF ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ। ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਹੀ ਤਜ਼ਾਦਾਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 1901 ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਾਲਾ ਲਿਖਿਆ 12 ਸਫੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਜ਼ਾਲਾ। 1901 ਤਾਈਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, 91 ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅਈਏ ਤਾਈਂ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਬੂਵਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਕੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਮੁੰਡਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਲਮ ਦਵਾਤ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਰੀਦ ਐਡਾ ਨਾੜੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ। 12 ਸਫੇ ਦਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ 12 ਸਫੇ ਦੇ ਰਸਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਜ਼ਾਲੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਵਹਾ ਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। इनकार भी किया तो दावा भी किया। जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये शख्स नबी और रसूल होने का दावा करता है। नाल ही अगली लाइन चाहे है, हाँ इस तौर से मैं नबी और रसूल हूँ, उस तौर से नहीं हूँ, इस तौर से हूँ। ये तू इस तौर से हैं तो फिर तुम मदय्य नबूवत है ना, जिस तौर से भी हैं यार, तू जिस तौर से भी नबी रसूल हैं, तू मदय्य नबूवत है कि नहीं। जाहिल मुखालिफ मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं मैंने नबूवत का दावा किया। दसो की समझे बंदा। जलेबियां बना के उन्हें दित्तियां ने, इन्हां जलेबियां नूं कोई बंदा नहीं सीधा करके दे सकता। रोज शामी सैनी साहब की बराड़ ते एक गलती का ज़ाला खुली हुंदी है। तो राती मैनूं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे सी, वो कह रहे सी कि एक ज़मीमा छपिया कादियान तो किरे पिछले सालां तो कहंदे ने सानूं भी नहीं सी पता। तो अब्दुल बासित साहब ने दस्सिया पिछले हफ्ते ही एक गलती का ज़ाला दा ज़मीमा छापिया। इस हद तक मिर्ज़ाई गिर चुके ने, अपने नबी दियां किताबां दे विच मॉडिफिकेशन करन लगे ने। एक गलती का ज़ाला दे विच मॉडिफिकेशन करके ओदा ज़मीमा आप पे छापदे ने। यानी नबी साडे कोलों गल नहीं समझाण होई, असीं ओनूं ना ओदा ज़मीमा छाप के समझाने आ भी ओह की कहना चाहुंदा। लाख दी लानत। अच्छा हामिद भाई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਡਾ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਿਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਆਖੇ ਨਬੀ ਤੇ ਉਹ ਜਾਹਿਲ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਜਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਦਾਵਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ। मतलब अगर नबी मनन ते जाहिल ते जे ना मनन ते महज इनकार भी दुरुस्त नहीं, ते जाना केड़ी मंजी थले ने। रोल है। सैनी साहब ने आख्या भाई मिर्जा साहब 1901 विच दस के गए सी महज इनकार नहीं करना, ते उन्हां दे पोतरे ने 73 साल बाद 1974 विच कौमी असैंबली च जाके महज इनकार करके ते अपने दादे दी मुखालफत की। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਯਾਹਿਆ ਬਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਡੂ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਉਹਨੇ ਹੈ ਨੋ,
ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 73 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਮਹਿਜ਼ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨੋ ਆਖਿਆ? ਨਾ ਨੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ ਯਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਨੀ ਨੂੰ ਤਾਹਿਰ ਅਮਜਦ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲ ਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਘਮਾਨਾ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਪਿਆ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਦਾਅਵੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ? 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਰਗੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਰ ਤੇ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖ ਮੇਰੇ कि मैं उनको ज़िल्ली तौर पर नबी मानता हूँ, मैं उनको बरूजी तौर पर नबी मानता हूँ। मैं क्या निकाह पढ़ाने लगे हो? ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਤਰ ਜਾਣਾ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਧਰੇ ਹੋਸਟਲ ਨਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜੇ ਗਲਤੀ ਨਾ। जिले ने दिल्ली बरूजी राती क्या नहीं दोनों देखे आज। ਭਾਈ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਵਾਣਾ ਜੇ ਦੱਸੋ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਇਆ। मिर्जा साहब और हुक्म करो। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आमिर भाई vengo in Italia. Vengo in Italia. E come mai voce così? Sono in aereo. Ah, sei in aereo. Ok, va bene. Domani c'è giuramento per il passaporto. Vai dove? A Napoli. Napoli. जी हाँ ठीक है। तो गल करो, मैं सुन रहे हैं। अच्छा ले दो ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਪਸ਼ਤੋ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਉਹ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਨਾ ਮਨ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਾਈ। ਇਹ ਗੱਲ अपॉइंटमेंट उन्होंने को असल डॉक्यूमेंट इटली दे ने ते रहंदे फ्रांस ने। लो फिर हुण कर लिए वक्फा क्योंकि तुहाडियां भी गल्लां गईयां ने मुक ते फिर वक्फे के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो ठीक है इंशाल्लाह। मैं अमर भाई वो वीडियो कट ली है राजा साहब वाली ते वो भी मैं करके अपलोड ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਮਾ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਾ ਜ਼ਾਲਾ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਬਦੁਲ ਬਾਸਤ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰੋ, ਹਾਂ ਪੌੜੀ ਚੜੋ ਹਮਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਜਾਣ ਦੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਈ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਪਲੋਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਲਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। उनके सिग्नल नहीं ठीक। वालेकुम सलाम। फोन करना पैना ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਚੂ ਭਾਈ।